Namaste and hello everyone. My name is Samita Banka. I am lecturer at Chemical Engineering at Sri KJ Polytechnic, Bharuch. You are going through Chemical Process Technology lecture series, specially designed for semester 3 students of GTU affiliated colleges, institutes and curriculum. This is the English version of this lecture series. We are doing this lecture series in English, Hindi and Gujarati. Where this particular lecture is on chapter number 4 of the curriculum that says polymer. Hello everyone. In today's lecture, we will go through urea formaldehyde. So urea formaldehyde, which is also known as urea methanol, okay, as the name suggests, is made up of two different types of monomers, urea and formaldehyde, which combine to form urea formaldehyde, and urea formaldehyde monomers undergo condensation reaction to give urea formaldehyde polymer and water as a byproduct. Now, urea formaldehyde is a thermosetting resin. That means once formed, it cannot be remolded. And as I said, formed by the condensation polymerization of urea and formaldehyde. So let us quickly go through the chemical reaction. As I said, urea, that is NH2CO NH2, along with formaldehyde HCHO forms urea formaldehyde, and two monomers of urea formaldehyde combine to give urea polymer and water as a byproduct. If we see through the process flow diagram over here, this is a very detailed one. In a very simple manner, we have number one as a mixing tank where urea and caustic soda and formalin, which together forms formaldehyde, are added, and the mixing occurs, and this mixed reactant is then fed to tank number 2, which is known as the condensate tank. In the condensate tank, all the vapors of unreacted formalin are collected, and then the entire mixture goes to number 3, that is filter. Screen filters are there. These screen filters are required to collect undissolved unmixed urea, so that there is no particle left, and then the mixture, which does not contain any solid urea or unreacted formalin, is sent through this autoclave or this this batch reactor, stir tank reactor. This stir tank reactor is jacketed, in which steam is provided for heating. uh, then once the reactant mixture is heated, it goes through this shell and tube heat exchanger, where it is water cooled. The reason of this thing is that we don't want our process to become autocatalytic or our product to degrade. So as soon as the temperature of the reactant mixture is rose to a certain level, then we have to cool it down. So we cool it under shell and tube heat exchanger, and then again this cooled reactant mixture comes down, and then further reaction takes place, and as much as the resin weight we get, we transfer this entire material to a stabilizer tank, or you can say a water wash. We give here ammonia water. Okay, we pour water, ammonia water. So this ammonia water carries all the unreacted or byproducts with it, whereas the urea formaldehyde resin is taken out as a final product. Now over here you can see that we even add glycol. Okay, so glycol acts as a stabilizer. Okay, so glycol is sent through a glycol measuring unit, and then filters are done, and then that is added to the this reactor. So glycol acts as a stabilizer, as well as it does not allow the viscosity of the reactant mixture to go too high. So if since it is a during this entire polymerization reaction, the weight of the uh, molecules can go extremely high. So to control the reaction and to have that stability, we add glycol. हिंदी में समझ लेते हैं। तो ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आज हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के मोनोमर से बनता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड को यूरिया मेथेनॉल भी कहते हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो है एक
थर्मोसेटिंग रेजिन है, यानी कि एक बार उसे हम शेप दे दें तो दोबारा हम उसे मेल्ट कर नहीं सकते हैं। और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के मेथड से बनता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब है एक ऐसा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें वाटर हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिले। अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें तो जैसा मैंने कहा, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड मिला के यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर यूरिया पॉलीमर की तरफ आगे बढ़ते हैं और वाटर हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है। यदि प्रोसेस फ्लो डायग्राम देखें तो जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं, मिक्सिंग टैंक से प्रोसेस शुरू होती है। मिक्सिंग में यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के लिए हम कॉस्टिक सोडा और फॉर्मेलिन अंदर डालते हैं। कॉस्टिक सोडा और फॉर्मेलिन अंदर मिक्सिंग टैंक में जाके फॉर्मल्डिहाइड बन जाते हैं। फिर इस रिएक्टेंट मिक्सचर को हम कंडेंसेट टैंक में डालते हैं। कंडेंसेशन टैंक में जो फॉर्मेलिन जो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसके वेपर्स को हम कंडेंसेट करके कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस मिक्सचर को स्क्रीन फिल्टर्स के थ्रू पास करते हैं। स्क्रीन फिल्टर का काम है कि जो अनडिजॉल्व्ड यूरिया है, पार्टिकल्स है, वो कलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद जो हमारा रिएक्टेंट मिक्सचर है वो एक बैच स्टर टैंक रिएक्टर में चला जाता है। ये स्टर टैंक रिएक्टर में हीटिंग के लिए स्टीम का यूज करते हैं जैकेट के थ्रू। पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो काफ़ी एक्सोथर्मिक है, इसीलिए रिएक्शन का टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होता है, हम रिएक्टेंट को शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास करते हैं, जहां हम उसे वाटर कूल करते हैं। एक बार रिएक्टेंट मिक्सचर का टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो हम इसे वापस इसी रिएक्टर में फीड कर देते हैं। एक बार हमें हमारा डिजायर्ड साइज का, ये डिजायर्ड वेट का जब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है, तब हम उसे एक स्टेबलाइजिंग टैंक में डालते हैं। ये स्टेबलाइजिंग टैंक में उसे वाटर और अमोनिया वॉश देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनरिएक्टेड यूरिया, अनरिएक्टेड फॉर्मल्डिहाइड, यदि फॉर्मेलिन या कॉस्टिक सोडा हमारे पास या कोई भी ऐसा अनवांटेड प्रोडक्ट बचा है तो उसे हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें जो वाटर बाई प्रोडक्ट बना है उसे भी हम यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, और हमारे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन यहाँ मिल जाता है। जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो कई बार पॉलीमराइजेशन की वक्त विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रिएक्टेंट मिक्सचर की, और रिएक्शन हमारे कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। इन दोनों ही चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं। तो ग्लाइकॉल क्या करता है कि रिएक्शन मिक्सचर की विस्कोसिटी को कम रखता है, जिससे रिएक्शन इजीली हो जाए। एट द सेम टाइम रिएक्शन मिक्सचर को स्टेबिलिटी देता है, पॉलीमर्स को स्टेबिलिटी देता है। Okay, moving on to the next slide. So let me go through once read out this process diagram description. Sorry. So raw material urea, a colorless crystalline organic compound, serves as the primary building block for the resin. Formaldehyde, a colorless gas typically provided in aqueous solution, acting as a cross-linking agent in the polymerization process. तो दो रॉ मटेरियल चाहिए, एक यूरिया एक फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया जो है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्राइमरी कंपोनेंट है। फॉर्मल्डिहाइड एक कलरलेस गैस है जिसे हम एक्वस सोल्यूशन फॉर्मेलिन में डाल के यूज करते हैं, और ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट का काम करता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में। Initial methylolation reaction. The molar ratio of urea to formaldehyde is crucial, typically between 1:1.6 to 1:2 to enhance the resin properties. तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड का जो रेशियो है वो 1:1.5 से लेके 1:2 तक रहता है, जिससे कि सही तरह की रेजिन, सही प्रॉपर्टीज के रेजिन हमें मिल सके। Urea is mixed with formaldehyde at temperatures of 50 to 60 degrees Celsius in an alkaline environment where 7.5 to 9 pH is maintained, facilitated by a base catalyst like sodium hydroxide. तो जो हमने देखा कि रिएक्शन जो होता है, जो मिक्सिंग होती है वो 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और पीएच जो है 7.5 से 9 के बीच में रखा जाता है। ये पीएच 7.5 से 9 करने के लिए हमें उसमें कॉस्टिक सोडा ऐड करना पड़ता है। This step forms hydroxymethyl urea, which are key intermediates for further polymerization. तो इससे जो हमें मिक्सचर बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सीमिथाइल यूरिया। Next step is condensation reaction. After methylation, the pH is adjusted to mildly acidic. So once the reaction starts, acidic conditions में उसे लेके आता है 4 to 5 pH using acids such as acetic acid या formic acid, and then it is again heated to 80 to 90 degrees.
तो यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये है कि जब मिक्सिंग करते हैं तो 50 to 60 डिग्रीज पे और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के 7.5 से 9 pH रखते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो एसिड ऐड करते हैं, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड। रिएक्शन 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे होता है और pH 4 से 5 के बीच में रखते हैं। This causes hydroxymethyl group to condense, forming methylene linkages between urea molecules, leading to production of linear and branched oligomers that ultimately form a cross-linked polymer. Stabilization and pH adjustment. Once the desired level of polymerization is achieved, the reaction is neutralized back to pH 7 to 7.5 to halt this condensation and stabilize the resin. एक बार जब हमें हमारे desired, मैंने जैसा कि मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर्स मिल जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो रिएक्शन को वापस रोकने के लिए न्यूट्रलाइज किया जाता है और पीएच को वापस से 7 7.5 पे ले आते हैं। ये ध्यान रखने की जब रिएक्शन होता है तो पीएच 4 से 5 होता है, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम उसे 7 से 7.5 ले आते हैं। At this stage, stabilizer may be added to improve the resin's shelf life and reduce the free formaldehyde content. जैसा कि मैंने कहा वो ग्लाइकोल की इसका यूज करके स्टेबलाइज करते हैं। Last one is concentration and filtration. The resin is concentrated to a solid content of 60 to 65%, typically through vacuum evaporation, and then filtered to remove impurities and unreacted materials. तो लास्टली हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड रेजिन कंटेंट है उसको कंसंट्रेट करते हैं 60 to 65% पे वैक्यूम इवापोरेशन की तरह, एंड देन हम उसको फिल्टर कर लेते हैं जिससे कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज हो या अनरिएक्टेड मटेरियल हो तो उसे आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस डिस्क्रिप्शन. If you have any doubt, you can post it in comment section. तो properties of urea formaldehyde we'll see. सो थर्मोसेटिंग है, हार्डन्स परमानेंटली ऑन हीटिंग. ओके, जैसे कि कहा थर्मोसेटिंग है, एक बार हीट किया हार्ड हो गया. कलरलेस टू वाइट सॉलिड होता है और पाउडर फॉर्म में होता है. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज यू कैन ड्रॉ देम, यू कैन पुट अ लॉट ऑफ वेट ऑन देम, वो टूटेगा जल्दी नहीं. गुड सरफेस हार्डनेस, हार्डनेस भी अच्छी है उसकी. एक्सीलेंट अधेसिव प्रॉपर्टीज, अधेसिव मतलब चिपकाने के लिए हम अच्छा खासा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं गम में, ग्लू में, फेविकॉल में. जैसे कि फास्ट क्योरिंग एट लो टेम्परेचर्स, दैट मीन्स इट इजीली गेट्स शेप्ड एट लो टेम्परेचर्स, और ठंडा सूख जाता है जल्दी, कड़क हो जाता है. हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी, एक बार एक शेप दे दिया तो उस शेप में हमेशा से रहता है. लो कॉस्ट, इट इज चीप. पुअर मॉइस्चर एंड वाटर रेजिस्टेंस, पानी लगने पे बिगड़ने की संभावना रहती है. नॉट सुटेबल फॉर आउटसाइड यूज, आउटडोर यूज, लिमिटेड वेदर रेजिस्टेंस. तो बाहर की दीवारों पे या बाहर किसी ओपन वेदर में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वैसे भी मॉइस्चर लगेगा तो खराब हो जाएगा, तो वेदर रेजिस्टेंट नहीं है वो. यानी कि यूजेस देख लेते हैं. तो अधेसिव यूज, अधेसिव मतलब कि एज अ गम यूज होता है प्लाईवुड में, पार्टिकल बोर्ड में, एमडीएफ में, लैमिनेट्स या डेकोरेटिव फर्निशेस में, मोल्डिंग कंपाउंड में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, नॉब, बटन वगैरह बनाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिंकल रेजिस्टेंस फिनिश, आजकल आता है ना रिंकल लेस टी शर्ट्स आती हैं, तो उस तरह का फिनिश अगर कुछ चाहिए तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है. पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है. फॉन्ड्री इंडस्ट्री जैसे कि सैंड बाइंडिंग एजेंट, एज अ कोर सैंड बाइंडिंग एजेंट, ठीक है, जहाँ पे रेती को आपको सेट करना है तो वहाँ पे यूज करते हैं. एंड एग्रीकल्चर में स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कोटिंग, तो नाइट्रोजन रिलीज जो फर्टिलाइजर्स करते हैं उनकी कोटिंग के लिए यूरिया फॉर्मल्डिहाइड करते हैं जिससे कि बहुत स्पीड में नाइट्रोजन ना हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म तक हमारा फर्टिलाइजर चल सके. So very small lecture but very important. So thank you everyone. If you have yet not subscribed, please subscribe our channel for notification on upcoming lectures. And you can post any of your queries regarding this lecture in the comment section. ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे कि आगे के लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए आपके मेल बॉक्स में. और अगर कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस लेक्चर के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं. थैंक यू.